ninjas to another session of fractions and decimals. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. How are you guys today? बढ़िया से पढ़ाई चल रही कि नहीं? फ्रैक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड वो आया कैसे, मतलब उसको उसकी ये वैल्यू होती क्यों है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, सो वेलकम टू ऑल माय न्यू नंबर ninjas who are new to the class. Most welcome. This is Sana Khan, your maths master teacher. Okay, chalo, let's start the session. So before that, quickly let's recap that what we have learned till now: fractions, comparison of fractions, equivalent fractions, addition of fractions and subtraction of fractions. Okay, chalo. Now before we move on, I would like to tell some information to all my ninjas who are new to the channel that Vedantu is having a pro subscription pack for you guys, in which Vedantu is going to provide you unlimited live sessions, unlimited personalized attention from India's best teachers, recorded sessions, notes, assignments, test series and micro courses which are nothing but chapter wise sessions, right? And complete crash course before exams to revise the entire syllabus. Plus along with it you are going to get test series, assignments, learning material and regular performance reports also, right? So ये सब कुछ बच्चों आपको सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है, आपको अलग अलग जगह नहीं जाना उस चीज के लिए। ये सब कुछ आपको सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है एंड दैट इज वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन पैक which you can buy for 6 months at just ₹8499 if you apply the promo code SKPRO. अगर आप प्रोमो कोड SKPRO अप्लाई नहीं करते हो तो the price will be 9,999. अगर आप अप्लाई करते हो तो it will just be 8,499. Okay guys, चलो let's now move to next. So what we are going to learn today? We are going to learn about multiplication of fractions with whole numbers. ठीक है, तो अब याद करो बच्चों, multiplication क्या होता है? Multiplication is nothing but repeated addition, right? जैसे हम 5 into 3 करते थे, तो 5 into 3 का मतलब होता था adding 3 5 times. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, है ना? So adding 3 5 times is nothing but multiplication of 5 with 3. So what is multiplication? Multiplication is nothing but repeated addition, right? Similarly, यही concept अगर हम fractions में apply करें, so multiplication of a fraction with a whole number, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि so इसका मतलब ये होगा कि suppose we have to multiply 4 with 1 by 2. That means what? 1 by 2 का repeated addition करना होगा 4 times. तो 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2. Now what is 1 by 2 plus 1 by 2? Denominator same है, numerator को add कर दो. This will become 2 by 2. Then this will become 2 by 2. Then what is 2 by 2? 1. So this is gonna become 1 plus 1. And what is 1 plus 1? 2. So what is 4 into 1 by 2? It is 2. But ये तो आपने addition करके सीखा है ना। अब ये देख, ये तो मैंने इसलिए बताया आपको कि 4 into 1 by 2 2 कैसे आया, because it is nothing but repeated addition of 1 by 2 4 times, है ना। Now हम समझते हैं कि why, how 4 into 1 by 2 will be what. ठीक है, so क्या करना है? बेसिकली आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो what is 4 into 1? 4 into 1 is 4. What is 1 into 2? 1 into 2 is 2. Now what is 4 by 2? 2 1s are 2, 2 2s are 4. So it will be nothing but 2, right? चलो next देखते हैं।
4 इंटू 1/2 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि वो एक्चुअली में कैसे उसका वैल्यू 2 आया। तो सपोज 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 आउट ऑफ 2, सिमिलरली 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, है ना। और जब हमने इसको ऐड किया तो कितने शेडेड पोर्शन है, 1 2 3 4 शेडेड पोर्शन है, लेकिन हमारे पास बॉक्स कितने थे, 2 के बॉक्स थे, तो टोटल कितने होंगे, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, तो कितने बॉक्स मिले हम लोग को, टोटल 2 मिले, एक ये और एक ये, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 2, राइट। और अगर हम शेडेड पोर्शन देखें तो शेडेड पोर्शन कितने हैं, 4 शेडेड पोर्शंस आउट ऑफ 2 होल बॉक्सेस। आया समझ में कि कैसे हमारा आंसर 1/2 को 4 बार ऐड करने से आता है 2, एंड दिस इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2, ओके। चल, so this is multiplication of a fraction with a whole number। तो समझ में आ गया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर इनटू होल नंबर, डिनोमिनेटर इनटू 1, जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चंस करके देखते हैं। व्हाट विल बी 1/2 इंटू 4, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 इंटू 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, देन 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाय 3, 7 इंटू 8 56 डिवाइडेड बाय 2, देन हाँ अब ये देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि 1/6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट विल गिव अस 3, है ना, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट विल गिव अस 3। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ 18 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा 18 इंटू 1 18 डिवाइडेड बाय 6, एंड व्हाट इज 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, राइट। सो यहाँ पे 18 है। अब ये तो मुझे पता था, बट आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 18 आएगा, ऐसे पता चलेगा कि आपको दिया है 1/6 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू 3। क्या करना, इस 1/6 को जब आप ऑपोजिट साइड भेजते हो तो दिस विल बिकम समथिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 6। जो डिनोमिनेटर है जब वो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाता है तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 3 into 6, what is 3 into 6? 18. Similarly, next question, 44 into dash will be 4। अब आपको दिख रहा है कि बड़ा नंबर जो है वो बन रहा है छोटा नंबर, मतलब कुछ तो डिवाइड होना चाहिए, राइट। और डिवाइड कैसे होगा, अगर फ्रैक्शन होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आना चाहिए, 44 into 1/11, क्यों, बिकॉज 11 4 44 होता है, राइट। Now similarly 12 into dash is equals to 4/7। So इसको हम x मान लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लो, ठीक है। So अगर मैंने इसको x मान लिया, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। So this x will be equal to 4 into 7 divided by 12, या फिर ये बोल लो it is equals to 4/7 into 12। याद रखना जो डिनोमिनेटर में है वो ऑपोजिट साइड जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, जो न्यूमरेटर में है वो ऑपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, ओके। सो 4/7 इंटू 12 आ जाएगा। सो व्हाट इज 4/7 इंटू 12? दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आएगा आपका 4/7 2 14, 4 carry 1, 7 7, 8 84, so 4/84, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो अब करते हैं कि अभी तो हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखा, मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर्स। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन। So ये कैसे होगा? To multiply a mixed fraction to a whole number, we have to first convert it into the form of an improper fraction and then we can multiply। ठीक है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं क्या करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, हम पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे करेंगे। तो 2 1/3 into 7 था, तो पहले मैंने 2 1/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। 3 2 6,
6. So 3 into 2 is 6. 6 plus 1 is 7. So this will be 7 upon 3 into 7 upon 1. Numerator into numerator, denominator into denominator. So 7 into 7, 3 into 1. What is 7 into 7? 49. What is 3 into 1? 3. So your answer will be 49 upon 3. ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो या 9 into 8, 9 8s are 72. 72 plus 3 will be 75. So this is 5 into 75 by 8 है ना. 9 8 is 72, 72 plus 3 75. अब देखो 5 और 8 एक दूसरे के डिवाइसेस नहीं होते हैं, तो we cannot cut it. तो it will be 5 5 the 25, 5 carry 2, 5 7 the 35, 36 37 divided by 8. Similarly 10 6 the 60. 60 into 2 is 60 plus 2 is 62. So this is nothing but 62 upon 6 into 3. Now what is 3 1s are 3 and this is 3 2s are 6. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. 2 1s are 2. So the answer will be 31. ठीक है, कुछ नहीं करना है. न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर. और अगर कुछ कट हो रहा है, सम आर डिवाइसेस, देन उसको कट कर देना है बस. ठीक है. Next 2 1s are 2, then 2 plus 1 3. So it will be 3 by 2 into 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6. So the answer will be 6. Okay. Now next topic is fraction as an operator of. फ्रैक्शन क्या करता है एज एन ऑपरेटर ऑफ? बहुत आसान है कि अगर हमें बोला गया कि टेक 1/4 द पोर्शन ऑफ द केक, है ना. अगर ये बोला जाए कि टेक 1/4 द पोर्शन ऑफ द केक, इसका मतलब क्या होता है? इस ऑफ द केक का मतलब क्या होता है कि 1/4 ऑफ केक. दिस ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो व्हाट विल इट बी? 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और केक क्या है? एज अ होल एक केक है, राइट. ऑफ द केक मतलब एक केक. सो 1/4 ऑफ द केक का मतलब होता है 1/4 ऑफ 1. सो दिस इज व्हाट फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. दिस इज हाउ इट इज यूज. क्या करता है वो? ऑफ का मतलब होता है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन. एंड हमें भी पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल. तो पार्ट ऑफ अ होल का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे कि 1/3 ऑफ 2 बॉक्सेस या 1/5 ऑफ 1 चॉकलेट. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलो करो. शीला वांट्स टू बेक 5 केक्स फॉर स्कूल पिकनिक. The recipe says each cake needs 3/4 cup of sugar. How much sugar will Sheila need for her cake? Solve करो और comment करके आंसर बताओ. फिर मैं देखूंगी. Sheila wants to bake 5 cakes for a school picnic और हर केक में उसे लगेगा 3/4 of sugar. तो कितना शुगर मिला? आंसर बताओ और एक दूसरे का आंसर चेक करो, किसने सही बताया किसने नहीं बताया. ठीक है, चलो बताओ. आसान क्वेश्चन है ना. आगे आंसर सबका. सो क्या होगा इसका आंसर? उसे बेक करने हैं 5 केक, है ना. तो अगर उसे एक केक में 3/4 ऑफ शुगर लग रहा है तो उसे 5 केक में कितना लगेगा? वेरी सिंपल, 3/4 into 5, है ना. दिस इज नथिंग बट 15 upon 4. वेरी सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इट टेक्स कार्ल 2/3 of an hour to clean his room every day. Now how many hours did he spend cleaning his room in the month of May? कैसे निकलेगा कि कार्ल को 2/3 of an hour लगता है हर दिन अपना घर साफ करने में. तो उसे टोटल कितने घंटे लगेंगे अपना पूरा रूम साफ करने में मई के मंथ में? ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा मल्टीप्लीकेशन है. ध्यान से सोचो कैसे होगा. सोच लिया आप लोगों ने? मैं बताऊं कैसे होगा. देखो, उसको 1 डे पे लग रहा है 2/3 of 1 hour, है ना. तो उससे मई में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 डेज होते हैं, राइट. सो यानी कि उसे 31 डेज में कितने लगेंगे? 31 डेज में लगेंगे 2/3 of an hour
into 31, राइट। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, 2/3 into 1 hour into 31। ऑफ मतलब into, आर मतलब 1 hour, राइट। नाउ अब 3 के टेबल में 31 तो आता नहीं है, तो इट विल बी नथिंग बट मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। सो 2 1s are 2, 3 2s are 6, 62 hours। इतने घंटे लगेंगे उसको। कितने घंटे लग रहे हैं, 62/3 hours। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ओके, चलो अब करते हैं होमवर्क क्वेश्चन। ये है आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, सॉल्व करना, मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना। मैं देखती रहूंगी कि कौन कौन बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन मेरे अच्छे बच्चे, मैं जरूर देखूंगी। ठीक है गाइस, and yeah, before you guys leave, I would like to once again tell you guys about the Vedantu Pro subscription pack, which you guys are going to get at just ₹8499, in which everybody will be provided with unlimited live session, recorded session, micro courses, that is chapter wise lessons, and test series, assignments, personalized attention from India's best of best teachers. Okay guys, so all of this you can get at just ₹8499 by using which code? By using the code SKPRO, भूलना मत। Okay, तो चलो क्विकली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बढ़िया से हम आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।